Hello, my dear students. Welcome to Social Studies class. See, children, I'm already sent you two lessons, and the third lesson I'm sending you immediately after that, as I had not done the few lessons because of the second term exam also, and due to some technical reasons. So I'm just hurrying up with this. You have to go through the video, children, whatever videos we are sending, and complete your notes in your class workbook, children, and do the activity whatever is given. So today we begin with chapter 8 of history lesson number 8, the first empire, the Mauryas. Now you might be thinking that why miss has not started lesson number 7. See, lesson number, we are taking up lessons which will be useful to you in the next 7th standard, because already we are in lack of time and we are not able to complete the entire textbook. The entire textbook has 29 lessons. Those who are coming to school, already I have explained to them that why we are skipping the lessons and all that. But those who are not attending the school, those who are only on online lectures, I just want to clear that in school only we are clearing the doubts, children, and just asking them to revise. This online classes, we are sending you the entire explanation of the lesson, children. So remember, children, don't think that we are not coming to school so we are missing something. Everything, explanation and everything we are doing on this through this video, YouTube videos, and any doubts and further revision and extra information, that all we are giving in the class. And if you have any doubts, you can surely ask on the WhatsApp group. Every day we are having this WhatsApp group, children. So please ask on the WhatsApp group and try to concentrate whatever explanation is done. So open your textbook to page 64, children. Whenever you open this video, you also open the textbook. This is on page 64, children. And this lesson is connected to history lesson number 6, what we have done, the Janapadas and the Mahajanpadas. And Mahajanpadas, in that I have already explained you that there were total 16 Mahajanpadas and Magadha was the most powerful Mahajanpada. So how this 16 Mahajanpadas and the Janapadas came under one empire, means entire India. This was the first time ever in the history of India that India was under one empire. That is because of the rule of Ashoka. King Ashoka will study because of the Mauryan empire. See, the Mauryas were the first king. अब ये मौर्य क्या होता है, there are some dynasties, और what we say, उनका जो सरनेम वाइज जो चल रहा है किंग का, according to them, the Nandas, the Cheras, the Cholas, the Pandyas, the Rashtrakutas, and all that. So in the same way, we have one dynasty of kings called as the Maurya. So this Maurya kingdom were the very most important. We are studying about Mauryas because they were the first kings, and their kingdom was such that they brought all the small kingdoms under one rule. That is why it is called as the first empire, children. India became one, so it came under one rule, children. So we'll study about the Mauryas in this lesson. We'll study about the timeline, how this Mauryan empire came into existence and what time period. Also we'll study about the greatest king of the times, Indian kings. The greatest king was Ashoka. Ashoka the Great. His name was only Ashoka the Great. He was called by that name, Ashoka the Great. We'll study about the entire administration, मतलब मौर्य के टाइम पर गवर्नमेंट कैसा था, टैक्स कलेक्शन कैसा था, एग्रीकल्चर कैसा था, all that we'll study. Also we'll study why this Mauryan empire came to an end, and after that the other Shunga's king took up the Mauryan empire. मतलब उसके बाद दूसरा जनरेशन शुरू हुआ जब मौर्यास के सब किंग ख़त्म होने लग गए. मतलब देयर what is that, the king became weak after King Ashoka. Then the other kings took over the Mauryan empire. So this is the Getup. First here in the box it is given us. This is why, what is Janpada and what is Mahajanpada. I have already explained you. Janpada means small kingdom and Mahajanpada means bigger kingdom. Now you see the timeline on page 64, children. Always the backward years it goes. That is a BCE, means before common era. So the years are backwards. That is from 600 BCE to 400 BCE. Rise of Magadha as a powerful Janapada. So Magadha just started as a powerful Janpada. You can say Mahajanpada also from 600 to 400 BC. Then what happened? Chandragupta Maurya established this Mauryan kingdom in the year 321 to 297 BC.
During that time only, Alexander the Great, he was called Alexander the Great because he was a very ambitious king from Greek, and his ambition was to conquer the entire world, but he couldn't do so because of some reasons. And he was having an ambition to just fight wars and conquer the other countries. He had conquered so many countries, Afghanistan and all. Finally, when he reached India, he got tired and his health deteriorated, so he had to go back to his own country. Then we'll study about after Chandragupta, Bindusara. Then after Bindusara came his son Ashoka and his rule, and how this Kalinga war changed the life of Ashoka. Then we'll study about the Mauryan dynasty. It ruled up to 200 BC. After that, that is from 100 BCE, the Shunga kings came into existence. Now come on the page 65, children. Next page. So I already explained you what we'll study. In this chapter, you will study the emergence of Magad Empire and its administration, the important literary sources. See, in the first chapter of history, I had explained you how do we come to know about such old time period. Before common era means so many years, it is about 3000 2500 years ago period. So how do we come to know about that? There are some archaeological sources. So archaeological sources and literary sources. The literary sources means the books from which we get the exact information about that period. In that period, what was the political life, what was the economic life, what was the social life of the people. So that we are going to get it, the information from two main books. That is, the two main books are Arthashastra book, which was written by Kautilya. Kautilya's another name is what, Chanakya. And one more book which is called as Indica. Indica was written by a Greek traveler. He had come to India just as an ambassador and to stay in India, and he wrote his accounts. Accounts मतलब उसने सब Indian kings के बारे में, Indian लोगों के बारे में सब लिखा है. So his book came to be known as Indica, and from that, so these two books are very important sources about the Mauryan Empire and about that time, children. And also the archaeological sources, like you can see on page 64, children. Ashoka pillar, again I will show you Ashoka pillar. This is Ashoka pillar, is situated at Sarnath, and this, the upper part of the pillar, is taken as our national emblem, which we see on all our currency notes and all the government important documents and all that. So because Ashoka was such a great king, in his remembrance we have taken his pillar, means he had constructed this pillar at Sarnath, and so to remember Ashoka always, we have taken the picture of the upper part of this pillar as we consider it as our national emblem. So the archaeological sources like the Ashoka's edicts मतलब उन्होंने जो rules and regulations सब लिखवाए थे, कहाँ लिखवाए थे? Walls पे, pillars पे. So that is called as edicts of Emperor Ashoka. And other variable sources like coins and punch mark coins were that time. All this becomes the sources of the time period, of that time period. Means हमें information कहाँ से मिलती है? These books and the archaeological sources like the Ashoka pillar, edicts of Ashoka, and the coins used during that time. Okay, children, so these are the archaeological sources. Now we'll study about Alexander the Great. You can see the picture of Alexander king here. He was a Macedonian king, and he had invaded the entire northwestern India in the 4th century. एंड ही हैड कम ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब मौर्य से पहले कौन से किंग थे? नंदा किंग थे. वहाँ के किंग थे नंदा, वो उनके वंशज, जो डायनेस्टी कौन सी थी? नंदा डायनेस्टी. ही फेल्ड टू क्रॉस द रिवर बीस, जब वो नॉर्थ वेस्ट पंजाब तक पहुँच गए, बट आफ्टर पंजाब ही कुडेंट क्रॉस. हूँ? Alexander the Great couldn't cross the Beas river, and his also soldiers were tired. I told you, he came on a long way since Macedonia, going on fighting wars and conquering the kingdom. At last, when he reached the northwest part of India, his soldiers were tired also. The Nanda kings were ruling at that time, and Alexander himself was tired and sick, and he couldn't cross the Beas river of Punjab, and so he couldn't conquer entire India, and he had to leave India, and he went back to his own country, but he left his governor Seleucus Nicator to conquer the other parts of northwest India, children. So Alexander's invasion weakened all the smaller kingdoms. इससे एक फ़ायदा मौर्यन एम्पायर को क्या हुआ कि नंदा किंग वो टाइम पे रूल कर रहे थे, एंड जब अलेक्जेंडर ने ये सब इन्वेजन किया, इन्वेजन मतलब कॉन्कर, लड़ाई, वॉर किए, पूरे वो एरिया को वीक कर दिया, एंड
तो जितने भी स्मॉलर किंगडम्स थे नॉर्थ में वो सब वीक हो गए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि अब वो कॉन्कर कर सके. एंड दस पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मौर्याज. सेल्यूकस निकेटर अपॉइंटेड मेगस्थीनस. अभी मैंने आपको बताया था मेगस्थीनस वॉज अ ऑथर ऑल्सो एंड ही वॉज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता. ही केम एज एन एम्बेसडर. वो आए थे ग्रीक से और वो एक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में. Now we'll study about the Mauryan Empire. The foundation of the Mauryan Empire is an important event in the Indian history. क्यों मौर्यास इतने इंपॉर्टेंट है? इसके पहले भी बहुत किंग थे, जैसे आपको बताया गया नंदा किंग्स थे, नंदा डायनेस्टी थी. बिकॉज मौर्यास को इसलिए याद किया गया है बिकॉज ही ब्रॉट अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया को एक कंट्री जैसा आज भले इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, बट देन ऑल्सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन गवर्नमेंट. इन द सेम वे मौर्याज ने भी जितने भी छोटे छोटे अलग अलग किंग्स थे उनको सबको हटाकर पूरे इंडिया को एक किंगडम में बांध लिया था. सो ही ब्रॉट द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. विल स्टडी अबाउट चंद्रगुप्ता मौर्य. ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर. Chandragupta Maurya was the first ruler of Mauryan dynasty in India. He was forced by the Nanda rulers to take refuge in the northwest India. एंड यर द नंदा किंग्स, स्पेशली किंग धनानंदा, उन्होंने चंद्रगुप्ता मौर्य की बहुत इंसल्ट की थी और उनको उनके किंगडम से निकाल कर उनको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया था, रेफ्यूजी बना दिया था. मतलब अपने देश से निकाले जाते हैं दूसरे किंगडम में जाकर रहते हैं उनको बोलते हैं रेफ्यूजी. बट वहाँ पर उनको मिल गए चाणक्य, जिसका फोटो आप नीचे देख रहे हैं. चाणक्य मीन्स कौटिल्य, उनका दूसरा नाम कौटिल्य है. ही वॉज अ ब्राह्मीन और उनकी भी इंसल्ट धनानंदा ने की थी. किसकी इंसल्ट की थी? ये ब्राह्मीण जो चाणक्य थी उनके भी इंसल्ट की थी और साथ में जो चाणक्य की इंसल्ट के साथ साथ में उन्होंने मौर्य मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य को भी अपने किंगडम से बाहर निकालने में मजबूर कर दिया था. तो जब दो एनिमी किसके थे? धनानंदा के थे. कौन कौन दो एनिमी थे? चंद्रगुप्ता मौर्य एंड चाणक्य. आप दोनों साथ में मिल गए एंड दे बोथ प्लान्ड. किसकी ब्रेवरी थी? इसमें चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी थी और चाणक्य का दिमाग. आज हम लोग बोलेंगे एज इंटेलिजेंट और एज वाइज एज चाणक्य. चाणक्य के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी. उन्होंने बुक भी लिखी अर्थशास्त्र, जिससे आज भी हमें किंगडम चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत यूज़फुल बुक है. वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. अर्थशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय चाणक्य. तो चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्ता की ब्रेवरी ने मिलकर उन्होंने नंदा किंग्स को वहाँ से निकाल कर और चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर दिया 321 BC. गो ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक ऑल्सो चिल्ड्रन. ओके, नाउ द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन. मतलब एस्टैब्लिश तो कर दिया चंद्रगुप्ता मौर्य ने, अब उस एम्पायर को बढ़ाया किसने? उन्होंने आगे बढ़ाते गए और इंडिया को पूरा एक मौर्य किंगडम में लेकर आए. चंद्रगुप्ता फर्स्ट अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द नंदा किंगडम. मैंने आपको ये बताया ऊपर भी कि अलेक्जेंडर के आने से नंदा किंगडम के जो नॉर्थ में जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे वो ऑलरेडी वीक हो गए थे. तो सबसे पहले चंद्रगुप्ता मौर्य ने एम्पायर अपना बनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट में जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे उनके ऊपर अटैक करके उनको कॉन्कर करके और उनको पूरा जैसे अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र ये सबको कहाँ लेकर आए? मौर्य एम्पायर के अंदर लेकर आए. सो यू कैन सी अफगानिस्तान भी पहले इंडिया का ही पार्ट था चिल्ड्रन. पाकिस्तान तो था ही, अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, सौराष्ट्र, पाकिस्तान सब ये इंडिया के अंदर आ गए इन द ईयर फाइनली इन 321 BC. पाटलिपुत्र मतलब नंदा किंगडम का जो मगधा किंगडम का पाटलिपुत्र कैपिटल था. सी यू कैन से पटालीपुत्र ऑल्सो, यू कैन से पाटलिपुत्र ऑल्सो. इट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम. तो उसको भी कैप्चर कर लिया. तो फाइनली पाटलिपुत्र भी उनके पास आ गया. एंड द होल नॉर्थ ऑफ इंडिया, जितना भी नॉर्थ ऑफ इंडिया था एक्सेप्ट द थोड़ा नीचे साउथ का पार्ट छोड़कर, बाकी पूरा पार्ट जो है नॉर्थ इंडिया का पूरा जो पार्ट है वो किसके पास आ गया? चंद्रगुप्ता मौर्य के पास आ गया. सो दस इट कैन बी सेड दैट चंद्रगुप्ता वॉज अ ब्रेव रूलर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर and he ruled for 25 years and after that he abdicated his throne and became a Jain ascetic. तो चंद्रगुप्ता ने 25 साल तक जितने भी किंगडम्स हो सके मौर्य एम्पायर में ज्वाइन कर दिए एंड फाइनली आफ्टर रूलिंग फॉर 25 years he accepted the Jain religion. He became a Jain sadhu, Jain ascetic because he captured so many kingdoms and he established the Maurya empire. Now his son, after that you can see Bindusara. Chandragupta was succeeded by his son Bindusara, now who ruled from 297 BC to 273 BC, and he was the able son of an able, turn or your pages, able son of an able administrator. He defeated the rulers of 16 kingdoms. कितने किंगडम्स को उन्होंने हराया? 16 किंगडम्स को हराया. एंड एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मौर्यन एम्पायर एक्सक्लूडिंग कलिंगा. मतलब कलिंगा को छोड़कर. कलिंगा कहाँ पर है? ओडिशा में है. मतलब इतना तक पूरा ईस्ट तक लेकर गए मौर्य एम्पायर को. नॉर्थ
वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, पूरे में पूरे मौर्य एम्पायर को फैला दिया, एक्सेप्ट जो बे ऑफ बंगाल पे जो उड़ीसा स्टेट है, आज के नाम का जो उड़ीसा है, मतलब उसका नाम था कलिंगा, उसको कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी 16 पूरे किंगडम्स बिंदुसारा ने कैप्चर कर लिए। तो चंद्रगुप्ता तो ब्रेव थे ही, उनके बेटे भी उतने ही ब्रेव और एबल थे, तो कि उन्होंने किंगडम को और बढ़ाया। देखो सन का काम होता है, फादर के जो जितना भी काम होता है उसको आगे बढ़ाना। वैसे ही चंद्रगुप्ता फर्स्ट किंग थे, तो उनके बेटे ने वो किंगडम को और भी आगे बढ़ाया ना। ऑब्वियसली बिंदुसारा के जो बेटे थे अशोका ने कितना और आगे लेकर गए। एम्परर अशोका इज़ रिमेंबर्ड, उनको बोला ही गया है एम्परर। एम्परर का मतलब होता है बहुत बड़े राजा, सबसे बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा। एम्परर अशोका इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मोस्ट पॉपुलर, आज भी आपको देखो अशोक चक्र हमने लिया है, आपको मैंने बताया सारनाथ पिलर पे जो 4 लायन का जो है स्टैच्यू, उसके नीचे का जो चक्र है वो दैट इज़ टेकन इन आवर नेशनल फ्लैग ऑल्सो। सो अशोका चक्र इज़, अशोका बहुत इंपॉर्टेंट किंग है। Bindusara handed over his throne to his son Ashoka in the year 273 BC. Ashoka ruled from 273 to 232 BC. ये रूल है अशोका का। और ये आप मैप दिख रहा है, दिस मैप यू डोंट हैव टू डू, उसके बाजू वाला जो पेज का मैप है 67 का, वो आपको करना है। वी आर ऑन पेज 66 चिल्ड्रन नाउ। सो ये मैप में आपको बताया गया कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने कितना किंगडम पहले लिया। उसके बाद जो लाइट ब्राउन कलर है उसमें आपको बताया गया है कि बिंदुसारा ने कितना लिया है। और फाइनली जो ग्रे कलर, जो आपको डार्क ग्रीन जैसा कलर दिख रहा है, उसमें बताया कि अशोका ने कितने किंगडम्स अपने अंडर ले लिए। रेड डॉट से बताया गया कि कितने सिटीज़ थे वो टाइम पर। ब्लू स्क्वायर से आपको बताया गया है कि कैपिटल ऑफ मगध, मतलब कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर था पाटलिपुत्र। फिर आपको ग्रीन से बताया गया है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन लर्निंग। ये आपको मैंने 7th लेसन में जो हमने छोड़ा है उसके बारे में आपको अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। दो इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस लेसन, बट देन ऑल्सो आई विल टेल यू। 7th लेसन जो हमने छोड़ा है उसमें पूरा बताया गया है कि लेटर वैदिक पीरियड, मतलब जब वेदास बने थे, जो हमने 5th लेसन छोड़ा था उसमें था पूरा वेदास के बारे में, कि वेदास जब आर्यंस लोगों ने आर्यंस जब आए थे तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले ख़त्म कर दिया था। आर्यंस जब आए तो अपने साथ में वो लेकर आए राइटिंग और वेदास, तो उन्होंने वेदास लिखे गए हैं। तो वो वेदास आर द फर्स्ट इंडियन हिंदू रिलीजन की जो बुक्स है। तो वेदा के टाइम पे कैसा रीत रिवाज था, फिर लेटर वैदिक पीरियड में सिस्टम बिगड़ता गया। इट एंटायर कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड एज अ कास्ट बेस्ड, और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और होते गए जो कॉमन पीपल को तकलीफ़ होती गई। तो वेदास के टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स की पोजीशन हाई हो गई थी। इट वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द हाई कास्ट एंड लो कास्ट। तो ये कॉमन पीपल बेचारे जो लोअर कास्ट में थे वो बेचारे परेशान थे। दैट्स वाई दिस 2 न्यू रिलीजन एमर्ज। लॉर्ड महावीरा इंट्रोड्यूस्ड जैनिज़्म एंड लॉर्ड बुद्धा इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज़्म। ये आपको मैं बता रही हूँ 7th लेसन के बारे में, कि वैदिक पीरियड में जो जो कमियां आ गई थी, वैदिक पीरियड में जो जो लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ गए थे कास्ट सिस्टम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, कि जो जो कास्ट में बॉर्न हुआ है उसको वही काम करना पड़ेगा। इफ़ अ पर्सन वॉज बॉर्न एज अ कॉबलर सन तो उसको कॉबलर का ही काम करना पड़ेगा। इफ़ अ पर्सन वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मीण तो उनको ब्राह्मीण का ही करना पड़ेगा। एंड ब्राह्मीण्स को एकदम सुपीरियर गिना जाता था, जो उन लोग छोटे लोगों पर अत्याचार करते थे। टू रिमूव दिस थिंग 2 न्यू रिलीजन्स, उपनिषद भी आए वो टाइम पे चिल्ड्रन। उपनिषद्स वर रिटन, जो आज भी हम लोग यूज़ कर रहे जाते हैं, आज भी वो हिंदू रिलीजन के बहुत बड़े बुक्स है। उपनिषद, पुराणास, भगवद गीता एंड ऑल दैट, ये सब उस टाइम का जो बुक्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल टुडे। बट दिस to remove the what we say plight of the common people, to improve the conditions of the common people, these 2 new religions were introduced, that is a Jainism and Buddhism children. They were based totally on non-violence, that is ahimsa and truth, and very simple religion to follow for everyone. और जो वेदास में सब कुछ संस्कृत में था और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में सब कुछ प्रकृत और पाली लैंग्वेज में था, विच वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम। कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज थी, तो उनको अच्छे से ये रिलीजन अच्छे से समझ में आया। तो उस टाइम पे बहुत लोग जैन में कन्वर्ट हो गए, बहुत लोग वो ज़माने में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। और वो जो बुद्धिस्ट और जैन के जो सेंटर्स बनाए वो अशोका ने बहुत सारे पूरे अपने इंडिया में बहुत जगह पर जैन सेंटर्स और बुद्धिस्ट सेंटर बनाए। अशोका ने तो अब्रॉड में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी, श्रीलंका, सीलोन वगैरह में भी, आगे मलेशिया वगैरह में भी ये बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड करने के लिए बहुत काम किया है किंग अशोका ने। बिकॉज किंग अशोका लेटर ऑन एडॉप्टेड बुद्धिज़्म रिलीजन, और उन्होंने अपना एक नया रिलीजन बनाया धम्मा, जिसको बोलते हैं। आपको मैं आगे समझाऊंगी वो लेसन में। सो दिस 2 रिलीजन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चिल्ड्रन रीड एटलीस्ट लेसन नंबर 7। भले वो पोर्शन में नहीं है, बट यू कैन रीड लेसन नंबर 7। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पार्ट ही है वो, तो आप जरा रीड करना। सो ये मैप में आपको दिखाई देगा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धा एंड जैन रिलीजन। बुद्धा रिलीजन बनाया था लॉर्ड बुद्धा ने, बुद्धिज़्म बनाया था लॉर्ड बुद्धा ने, और जैनिज़्म बनाया था लॉर्ड महावीरा ने।
So I hope you will read the lesson number 7, children. Please read lesson number 5 and 7 just for your reference. Only reading of textbook. Okay, children. Now, the important thing is about Kalinga War, children. This Kalinga War, जो his किंग अशोका की पूरी लाइफ चेंज कर दी. इट इज़ कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ किंग अशोका. तो कलिंगा अभी तक किसी ने कैप्चर नहीं किया था, बिंदुसारा ने भी नहीं कर पाया था. तो क्या है ये कलिंगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू. कलिंगा प्रेजेंट डे इट इज़ कॉल्ड एज कोस्टल ओडिशा वॉज अ पावरफुल किंगडम, वेरी वेरी पावरफुल. वहाँ से सब ट्रेड होता था, पिलग्रीमेज जाते थे लोग वहाँ से, और वो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे था, वेरी इंपॉर्टेंट रूट. एंड इट वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल. ये मौर्यन के पास नहीं था दैट, जब तक अशोका नहीं बने. लेकिन अशोका को वो एकदम चाहिए था वो किंगडम, वो कलिंगा किंगडम. उनको कैसे भी वो अटक रहा था कि मैं ये किंगडम कैसे हासिल नहीं करता हूँ. सो बिकॉज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. दस कॉन्करिंग कलिंगा वॉज वाइटल. सो बहुत इंपॉर्टेंट था अशोका के लिए कलिंगा कॉन्कर करना. सो ही इन्वेडेड दिस टेरिटरी इन 262 BC, चिल्ड्रन. बट दिस कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड देयर वॉज ब्लड शेड एवरीवेयर. एंड सो नाउ व्हेन अशोका सॉ दिस बैटल फील्ड के यहाँ पर तो इतने लोग मर गए इसमें, इतना उनको रिपोर्ट मिला कि इतने ज़्यादा ब्लड शेड हुआ है. सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोकाज लाइफ एंड ही विटनेस्ड ऑल दिस ब्लड शेड. उनको बहुत अंदर तक दुख हुआ, डिस्ट्रक्शन देखकर, लोगों का दुख देखकर, सफरिंग देखकर. सो ही वाउड, उन्होंने कसम ले ली कि आज के बाद मैं एक भी वॉर नहीं लड़ूंगा, वरना आज पूरा का पूरा इंडिया, श्रीलंका, सब कुछ वो मौर्यास के अंदर आ जाता. लेकिन उन्होंने स्टॉप कर दिया आफ्टर द कलिंगा वॉर. इसलिए आपको ये जो मैप दिख रहा है पेज 68 पे, चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अशोका ने एम्पायर इतना तक बढ़ा दिया था, एक्सेप्ट थोड़ा ईस्ट का पार्ट भूटान वाला और एक्सेप्ट थोड़ा साउथ का पार्ट उन्होंने छोड़ दिया. वाई उन्होंने छोड़ दिया, बिकॉज आफ्टर द कलिंगा वॉर ही डिसाइडेड नॉट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट, एंड दैट इज़ वाई इतना पोर्शन वो ले नहीं पाए. एंड ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस एंड ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, किंग मतलब राजा, और उनके वहाँ पे उनके किंगडम में रहने वाले लोग मतलब प्रजा यानी सब्जेक्ट्स. तो उन्होंने देखा कि मैंने इतना सारा किंगडम तो बड़ा कर दिया है, इंडिया को पूरा यूनिफाइड कर दिया है, अभी मैंने मौर्य किंगडम इतना बड़ा बना लिया है. सो नाउ ही डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर एंड जस्ट सेवा करना चाहते थे वो अपने सब्जेक्ट्स की, यानी अपने लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए. दैट इज़ वाई अशोका इज़ रिमेंबर्ड. वो चाहते तो और कितना भी मौर्य एम्पायर को बढ़ा सकते थे, बिकॉज ही वॉज ऑफ अ यंग एज, ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव. तो चाहते तो और भी किंगडम कॉन्कर कर सकते थे, बट उनकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, एक पॉइंट आ गया कि नहीं, इसके बाद लड़ाई नहीं लड़नी है कलिंगा वॉर के बाद. सो ही चेंज्ड हिज एंटायर लाइफ एंड फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस. चिल्ड्रन, आई विल स्टॉप दिस लेसन हियर ओनली. यू हैव टू रीड द इन्फोपेबल बॉक्स कि ये जो अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य के जो बुक्स लिखी गई, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, चाणक्य एंड मेगस्थनीज इंडिका, उसके अलावा दूसरी भी सब बुक्स है जो वो मौर्यन एम्पायर के टाइम के पीरियड को हमें एक्सप्लेन करती है, हमें उसके इन्फॉर्मेशन देती है. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दैट टाइम. एंड अशोका का दूसरा नाम है देवनम प्रिय एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रियदसी. देवनम प्रिय मीन्स इतना उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि वो गॉड भी उनको पसंद करते थे, इसलिए उनका नाम है देवनम प्रिय. और प्रियदसी मतलब ही वॉज वेरी गुड लुकिंग. उनका फोटो आपको नीचे दिख रहा है, ही स्केच इज गिवन डाउन. सो दिस इज़ बाय इन्फोपेबल बॉक्स. चिल्ड्रन, आई विल स्टॉप दिस लेसन ईयर चिल्ड्रन, बिकॉज ऑलरेडी आपको ये थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा. फिर रिमेनिंग पार्ट के अशोका ने भी अपनी लाइफ में क्या क्या किया, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और मौर्यन का किंगडम कैसे डिक्लाइन हुआ किंग अशोका के बाद, all this I will explain you in the second part of the video, children. So this is a very important lesson for history, and you have to read lesson number 5 and 7 also. And I will stop here on page 67. We'll continue Ashoka's Dhamma in the second part of the video. Thank you, children. I'll stop it here.